Good morning, students. So we will start now. Chapter 1. That is the second book. First book we have completed. The name of this book is India People Economy. That is the name of this book. India People Economy. This is the name of this chapter book. From that we will start this chapter. First chapter that is given. Chapter 1. The name of this chapter is Population, Distribution, Density, Growth and Composition. These topics we have already discussed in the last book, Fundamentals of Human Geography. उस book में हमने ये पढ़ लिए थे topic, but again I will explain about these things. So first we will discuss about population. That you know very well population क्या होता है? The people those who are living in an area, they are that is known population of that area. यानी एक particular area में जो लोग रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उस area की population बोलते हैं. Then next is given distribution. What do you mean by distribution? Distribution means the number of people living in an area. यानी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो नंबर ऑफ पीपल रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया. यानी वहाँ पे कितने लोग रहते हैं? फॉर एग्जांपल इफ इन योर विलेज देयर आर 2000 पीपल, so that is the distribution of population in your village. यानी एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उस एरिया की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन बोलते हैं. Then next is given density. Density means the people those who are living in per square kilometer. यानी एक पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं उसको हम बोलते हैं डेंसिटी. नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी. देन ग्रोथ, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर हमारी पॉपुलेशन में जो चेंज होता है दैट इज कॉल्ड ग्रोथ. बिटवीन टू पीरियड ऑफ टाइम चेंज इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड ग्रोथ. देन नेक्स्ट इज गिवन कंपोजिशन. कंपोजिशन वी हैव डिस्कस इन द लास्ट बुक आल्सो. उसमें हमने पॉपुलेशन कंपोजिशन में क्या किया था? उसमें हमने किया था ए स्ट्रक्चर. Then we have discussed about the literacy rate. Then we have discussed about the sex ratio. So these all are known as population composition. In previous book we have discussed about the world. Now we will discuss about India only. This book is totally depend on India. इसमें सारा का सारा हम डिस्कस क्या करेंगे? इंडिया के बारे में करेंगे. So let us start about this. First topic that is given about the distribution of population. It means how people are distributed in our country. यानी हमारे देश के अंदर जो population है वो कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है. तो it is said that it is unevenly distributed in our country. Population distribution जो हमारे देश के अंदर है वो uneven है. That is not equal. यानी हर एक एरिया के अंदर आपको equal population नहीं मिलेगी. अगर हम इसके अंदर देखें तो इसका कारण कई कारण है. That we will discuss in the next topic. उसके कारण क्या है कि distribution है वो uneven है, equal नहीं है. तो उसके अंदर सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो उत्तर प्रदेश जो हमारा सबसे बड़ा स्टेट है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारे देश के अंदर किस स्टेट के अंदर है? उत्तर प्रदेश के अंदर है. अप्रोक्सीमेटली 16 करोड़ पॉपुलेशन है वो अकेले आपकी उत्तर प्रदेश के अंदर है. मोर देन 16 करोड़ हो गई है. ठीक है. और 10 स्टेट्स बताए गए हैं. उत्तर प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, गुजरात. These are the 10 states. In these 10 states 76% population of the complete India is living. यानी 10 स्टेट के बाद में जो हमारे 18 स्टेट और बच गए. सॉरी 18 ओके 18 नहीं अभी 17 हो गए क्योंकि जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन गया है. तो 17 स्टेट्स आप कह सकते हो. 17 स्टेट्स के अंदर और 7 यूनियन टेरिटरी आल्सो इंक्लूड. यानी 17 और 7 24 24 के अंदर पॉपुलेशन कितनी रहती है आपकी? ओनली 24%. 76% population in these 10 states and remaining 24% in 17 state and 7 union territories. मान के चलो आप उसके अंदर हमारे 24% population ही रहती है. So this is the uneven distribution of population in our country. अब उसके कारण क्या है? What are the factors responsible for this uneven distribution of population in India? तो पहला बताएगा physical factor. Physical factor related to the environment you can see. जो हमारा environment है उसके भी कुछ कारण हैं. उसके अंदर सबसे पहला आपका जो बताया गया वो आपका बताया गया है क्लाइमेट. क्लाइमेट क्या होता है? एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ एन एरिया. एक कंडीशन क्लाइमेट की कंडीशन एक एवरेज कंडीशन एक पर्टिकुलर एरिया की. आपको पता है जहाँ पे हॉट क्लाइमेट होता है जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा रहता है इन दोज एरियाज पॉपुलेशन इज वेरी लेस एंड द क्लाइमेट देयर इज सो मच कोल्ड जहाँ पे ठंड ज्यादा पड़ती है वहाँ पे दोनों जगह पे. फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू अबाउट राजस्थान. अगर राजस्थान में देखें तो आपको इतना सबसे बड़ा स्टेट है राजस्थान. अकॉर्डिंग टू एरिया राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ आवर कंट्री. बट पॉपुलेशन के अंदर क्या है वो काफी पीछे आता है. क्यों?
क्योंकि वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो इतना ज़्यादा सूटेबल नहीं है लोगों को रहने के लिए, तो इसके कारण क्या है वहाँ पे पॉपुलेशन कम है। एक तो गर्मी ज़्यादा पड़ती है उस एरिया के अंदर। सेकंड, इफ यू विल कंपेयर विद द कोल्ड क्लाइमेट, तो आप अगर जम्मू कश्मीर में देखोगे तो लेह लद्दाख के अंदर बहुत कम पॉपुलेशन है। कारण क्या है कि वहाँ पे जो कोल्ड क्लाइमेट है बहुत ज़्यादा कोल्ड है, तो वहाँ पे लोग नहीं रहना चाहते। देन सेकंड इज वाटर, दैट इज द एसेंशियल थिंग फॉर ह्यूमन बीइंग, सबसे जरूरी चीज़ है वाटर। अगर वाटर फैसिलिटी प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे भी लोग कम रहते हैं। राजस्थान इसका एग्जाम्पल बेस्ट है, जहाँ पे पॉपुलेशन राजस्थान के अंदर कम है वहाँ पे वाटर की कमी है, उसी के कारण वहाँ पे कम है। सेकंड इज गिवन टेरेन, टेरेन का मतलब होता है सरफेस ऑफ द अर्थ, वो आपका प्लेन है, माउंटेन है, प्लेट्यू है। प्लेन एरिया में आपको पॉपुलेशन ज्यादा मिलेगी। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स दोज आर आई हैव रिटन हियर, दे ऑल आर प्लेन एरियाज, मैदानी एरिया है, ना कि वो प्लेट्यू एरिया। प्लेट्यू एरिया बहुत कम है इसके अंदर, तो माउंटेन और प्लेट्यू के अंदर पॉपुलेशन आपको क्या है, कम मिलेगी। द नेक्स्ट इज गिवन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग नाउ, हाउ पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसके लिए भी क्या है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होना भी बहुत जरूरी है उस एरिया के अंदर प्रॉपर। तो ये फिजिकल फैक्टर है पहले, ये ट्रांसपोर्ट आपका इसमें भी आ जाएगा, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर में भी। देन नेक्स्ट इज गिवन सोशियो इकोनॉमिक। सोशियो इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है कि सोसाइटी जो है, हमारी समाज जो है, उसके अंदर कैसे, जैसे फर्स्ट इज गिवन सेटल्ड एग्रीकल्चर। सेटल्ड एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे एग्रीकल्चर स्टार्टिंग से होता आ रहा है, फ्रॉम द बिगिनिंग पीपल वर डूइंग एग्रीकल्चर इन दैट एरिया, तो वहाँ पे लोग क्या है, ज्यादा रहते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने पढ़ा है, तो उसके अंदर क्या है, वहाँ पे सेटल्ड एग्रीकल्चर वहाँ से स्टार्ट हुआ था, फ्रॉम दैट पीपल स्टार्टेड लिविंग इन दैट एरियाज। देन पैटर्न ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, पैटर्न दैट वी हैव डिस्कस्ड द लास्ट चैप्टर ऑफ द फर्स्ट बुक, ह्यूमन सेटलमेंट में हमने पढ़े थे पैटर्न आपका कॉम्पैक्ट, डिस्पर्स, सर्कुलर, आपका टी शेप में, वाई शेप में। तो वो पैटर्न भी क्या है, वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वहाँ पे आपने देखा होगा कुछ कारण थे, देयर आर सम रीजंस दैट्स व्हाई द पैटर्न्स वर मेड इन दोज एरियाज। देन नेक्स्ट इज अर्बनाइजेशंस, शहरीकरण। अर्बनाइजेशन अगर किसी एरिया के अंदर होगा, शहरीकरण होगा, तो उस एरिया में क्या है, पॉपुलेशन ज्यादा होगी। इंडस्ट्रीज दे आर प्लेइंग मेजर रोल, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्री दोनों एक ही चीज, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। जहाँ इंडस्ट्री ज्यादा होगी वहाँ अर्बनाइजेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। व्हाई, पीपल स्टार्टेड लिविंग इन दोज नियर दोज इंडस्ट्रीज, तो वहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे अर्बनाइजेशन ऑटोमेटिकली होना स्टार्ट होता है। तो ये क्या है, आपके सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर है। लास्ट इसमें दिया हुआ हिस्टोरिकल फैक्टर, ऐतिहासिक फैक्टर जो है। ऐतिहासिक का मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में ह्यूमन बीइंग्स ने कहाँ पर रहना स्टार्ट किया था, वो भी जरूरी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसके कारण हुआ। दूसरा, इन द एंशिएंट टाइम ब्रिटिशर दोज हु वर मेड कॉलोनी टू इंडिया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ सिटीज को डेवलप किया। दीज वर द प्रोविंशियल स्टेट्स फॉर देम, उन्होंने क्या बनाया था, अपना प्रोविंशियल स्टेट्स बनाया था, जहां से उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया था, ट्रेड, व्यापार करना स्टार्ट किया था थ्रू पोर्ट्स। ये सारी पोर्ट है उनकी, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। सो थ्रू दैट दे वर डूइंग द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो उसके कारण क्या था, उस एरिया के अंदर पॉपुलेशन वो ज्यादा रहने लगी, बिकॉज दे वर गेटिंग द एम्प्लॉयमेंट इन दोज एरियाज। उनको वहां पे क्या मिलता था, एम्प्लॉयमेंट मिलता था। नेक्स्ट इज गिवन पॉपुलेशन डेंसिटी, दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। नाउ नेक्स्ट इज गिवन पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी हम किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर या पर यूनिट एरिया, यानी पर स्क्वायर के एरिया में कितने लोग रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उस एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। अब इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2011 में जो हमारा सेंसस हुआ था, उस समय हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी थी, 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ये एवरेज पूरे इंडिया की बताई गई है, याद रखना ये। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इज 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। नाउ नेक्स्ट इज गिवन लोवेस्ट किसकी थी और हाईएस्ट किसकी है हमारे देश के अंदर। लोवेस्ट जो है वो अरुणाचल प्रदेश की है, 13 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश में क्या है, ओनली 13 पर्सन लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया। एंड इफ यू विल कंपेयर अबाउट द हाईएस्ट, तो हाईएस्ट सबसे ज्यादा कहाँ पे है, बिहार के अंदर है, 1106 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। 1106 लोग रहते हैं आपके पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। हमें जितना भी याद करना है, जितने भी आपको डाटा याद करने हैं, दे शुड बी अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, बिकॉज सम बुक्स दैट यू हैव परचेज्ड दे वर ओल्ड बुक। उसके अंदर क्या है, आपको 2001 का दिया हुआ है, तो 2001 का नहीं, आपको क्या करना है, 2011 का करना है। दैट आई एम टेलिंग यू, जो आपको मैं बताता जा रहा हूँ। 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है एवरेज हमारा पूरे इंडिया का। लोवेस्ट किसका है, अरुणाचल प्रदेश का है। हाईएस्ट किसका है, बिहार का है। क्योंकि सम बुक्स, दोज वर ओल्ड बुक्स, उसमें ये यहाँ पे वेस्ट बंगाल दिया हुआ है, वो गलत है, भी आपको बिहार करना है उसके अंदर। ओके,
अब अगर हम कैपिटल इसकी यूनियन टेरिटरी के हिसाब से करें तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो हमारा दिल्ली है वहाँ पे है 9340 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी यहाँ पे 9340 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर रहते हैं। अगर सारों का एवरेज देखा जाए सबसे ज्यादा यहाँ पे। अब पॉपुलेशन डेंसिटी आपने इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव रेड ओनली पॉपुलेशन डेंसिटी की, इसको हम सिर्फ ये करते हैं कि पर यूनिट एरिया डिवाइड कर दिया, टोटल पॉपुलेशन डिवाइड बाय टोटल लैंड एरिया। बट अब हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग वे में डिस्ट्रिक्ट करेंगे। पहला दिया हुआ फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। फिजियोलॉजिकल मतलब होता है कि पूरा लैंड एरिया लेंगे हम इसके अंदर। तो इसमें पहला जो दिया है टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन का मतलब क्या है कि इफ दे आर लिविंग इन विलेज और इफ दे आर लिविंग इन सिटी, चाहे वो अगर सिटी में रहते हैं चाहे वो गांव में रहते हैं, उन सारी को हम शामिल करेंगे। देन नेक्स्ट इज योर नेट कल्टीवेटेड एरिया। नेट कल्टीवेटेड एरिया का मतलब क्या होता है कि एट प्रेजेंट टाइम हाउ मच एरिया इज यूज्ड फॉर कल्टीवेशन, यानी प्रेजेंट टाइम में कितना एरिया हम कल्टीवेशन के लिए यूज कर रहे हैं, तो उसको हम क्या करते हैं फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। ये याद रखना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। देन नेक्स्ट इज योर एग्रीकल्चरल डेंसिटी। अब एग्रीकल्चरल डेंसिटी कौन सी होती है, टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन। अब जो गांव में लोग एग्रीकल्चर करते हैं, एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, उसी को शामिल करेंगे। जो शहरों के अंदर रहते हैं उनको हम शामिल नहीं करेंगे। और डिवाइड किससे करेंगे, नेट कल्टीवेटेड एरिया। ये तो दोनों में सेम है, नेट कल्टीवेटेड एरिया इसमें भी है इसमें भी है। नेट कल्टीवेटेड एरिया मींस एट प्रेजेंट टाइम में जो कल्टीवेटेड एरिया जहां पे खेती हो रही है उसी को हम शामिल करेंगे। तो दैट इज द एग्रीकल्चर डेंसिटी। तो दो हमें याद रखनी है, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी और एग्रीकल्चर। डिफरेंस किस चीज का है, सिर्फ इसमें टोटल पॉपुलेशन है, इसमें क्या है टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन है। डिवाइड दोनों का सेम है। So that we have discussed today. We have discussed about the population distribution of population. Then we have discussed factor responsible for uneven distribution of population and population density. So you will read this chapter from book and make your own notes from this. If you have any doubt, you can ask to me also. So thank you. Have a nice day. We will meet in the next video.